covering part 5, 6 and the rapid fire questions. So ये वीडियो में सब कुछ मिलेगा. So if you haven't watched part 1 of this video, then definitely I would suggest you to watch that, क्योंकि ये दो questions है. Of course I'm not gonna cover these questions again in the part 2. Okay, तो ये दो जो parts है वो आपको part 1 में मिलेंगे and remaining in the part 2. Post-graduation consideration. So what are the prospects for international students seeking employment in Luxembourg after graduation? Well, मैंने already cover कर दिया है थोड़ी देर पहले, but let me cover it again. Once you complete your masters, you can get 1 year of job seeking visa, like the job seeker visa or job seeking visa. So for that, again, you need to show some funds in your account, which is around 16,000 euros. आपको show करने पड़ेंगे funds में. But again, आपको 1 year का job seeking visa मिल जाएंगे. You can stay here, you can find jobs, and once you get the job, that company, that employer will provide you the work permit, work job visa. Simple, very simple. Okay, so ऐसा है. एंड इफ बाय एनी चांस आपको पीएचडी करना है, देन अगेन आपको आपके 3rd सेमेस्टर में ही अप्रोच करना पड़ेगा आपके प्रोफेसर को, सो दैट दे विल रिकमेंड यू एंड देन यू कैन अप्रोच टू सम अदर यूनिवर्सिटीज फॉर पोस्ट डॉक फॉर पीएचडी. वेल, बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी एंड पोस्ट डॉक, सो ये स्टेप्स होती है. Now, the second question is, how did the process for transitioning from a student visa to a work visa work in Luxembourg? It's very simple. मैंने already बता चुका हूँ कि first you will get a student visa. Once you are done with your masters, you can apply for the job seeking visa. And अगर आपको वो apply करने की जरूरत नहीं, अगर आपको directly job मिल जा रहा है, तो you can just contact your employer and they will provide you the work visa, and stamp you'll get your resident permit, job उस पे work permit type. सो दैट्स द थिंग. बट बाय एनी चांस आपको नहीं मिलता है तो आपको जॉब सीकिंग वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, एंड उसके बेसिस पे यू कैन स्टे हियर इन लक्समबर्ग फॉर एग्जैक्टली 365 days एंड यू कैन फाइंड योर जॉब. सिंपल. एंड वो अप्लाई करना बहुत सिंपल है. इन लेस देन अ वीक आपको वो आरपी मिल जाएगा, जॉब सीकिंग वीजा मिल जाएगा. सो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसीजर है. आई एम सो टायर्ड, मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ. सो हिट अ लाइक बटन बिकॉज you can see the efforts, right? Like and comment करो, nice और thumbs up. Do some comments ताकि ये वीडियो को रीच पड़े और ये सब तक शेयर हो. Okay, please do that thing. Thank you so much. So now the third question is a degree from the University of Luxembourg recognized in my home country and other countries I might consider working in. Guys, of course, it's a European country और ये यूरोपियन यूनिवर्सिटी है. सो यू कैन यूज, और वो हर एक यूनिवर्सिटी में रिकॉग्नाइज होगी, वेदर इट्स एन इंडियन यूनिवर्सिटी, पाकिस्तान, बांग्लादेश, एनी कंट्री, वो रिकॉग्नाइज होती है. डिग्री इज डिग्री. एंड ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटी ऑफ लक्समबर्ग बहुत रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है. आई गेस 270 और 280 रैंक है वर्ल्ड में. सो अगेन इट्स अ ग्रेट नंबर, लाइक बहुत अच्छा रैंक है, राइट? सो रिकॉग्नाइज होता है. Now let's move to part 6, which is living in Luxembourg. So for the first question is, how would I describe the cost of living in Luxembourg for a student? So in my case, I'm paying just 365 euro per month rent because my home is type 1. Now, what is this type 1, type 2, type 3, type 4? It's a 4 type के होते हैं accommodations. I've already made a separate detailed video on that topic, so you can just watch on my YouTube channel. But in my case, mine is type 1, so I just pay around 365 euros. टाइप 2 के लिए इट्स 450 यूरोस, मतलब 400 to 500 यूरोस. टाइप 3, अभी टाइप 1 मतलब मुझे प्राइवेट रूम मिलेगा, दैट्स इट, और किचन और बाथरूम शेयर्ड रहेगा. सिंपल. नाउ सेकंड इज टाइप 2, जिसमें मुझे प्राइवेट रूम और प्राइवेट बाथरूम मिलेगा, टॉयलेट बाथरूम, एंड जो किचन रहेगा वो शेयर्ड रहेगा. टाइप 3 मतलब आपको एक स्टूडियो मिलेगा जिसमें सब कुछ रहेगा आपका, बट अगेन यू विल नीड टू पे दैट मच अमाउंट, लाइक 600 to 750 यूरोस आपको पे करना पड़ सकता है. वेल, इफ यू आर कपल एंड लाइक आप अपने पार्टनर के साथ यहाँ पे परस्यू कर रहे हो, एंड इफ यू कैन शो दैट यू आर मैरिड और यू आर कपल, देन ऑफ कोर्स यू कैन अप्लाई फॉर देयर इज अ सर्टेन रूम जिसमें आप कपल के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, बट उसका चार्ज अराउंड 1400 or 1500 इज. अगेन it's a great option. You can stay together, you can cook together, you can eat together, you can study together. Yeah, so
That's the thing. Now let's move to the second question. Did I find it easy to adapt to the local culture and lifestyle? Well, I did not find any problem with the local culture and lifestyle. हाँ, lifestyle I face a problem. विंटर में जैसे मैंने आपको बताया कि शॉर्ट्स विंटर डेज होते हैं तो यार वो बहुत डिप्रेसिंग लगते हैं एंड इट्स सो न्यू फॉर मी लाइक लास्ट ईयर भी मुझे सेम डिप्रेशन हुआ था एंड ऑलरेडी मैं 1 साल यहाँ पे रह चुका हूँ बट स्टिल आई फेस दैट प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फील होता है वो अंधेरा लाइक अंधेरा ही हो जाता है लाइक 4:30 को पूरा अंधेरा सुबह मॉर्निंग 8:30 को भी अंधेरा होता है फिर 8:30 से धीरे 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 उजाला होता है अगेन 4:30 को अंधेरा तो बहुत ज्यादा बड़ी रात होती है यहाँ पे लाइक जो नाइट होती है वो बहुत बड़ी होती है सो या वो एक प्रॉब्लम हुई बट इससे लाइफस्टाइल से कोई लेना देना नहीं है बट हाँ लाइफस्टाइल से लेना देना है कि आप डिप्रेस फील करोगे बट इफ यू फाइंड अ पर्सन विथ यू जो आपके साथ रहता है या आपके फ्रेंड्स है बहुत अच्छे देन जस्ट हिट द जिम एंड यू विल नेवर फेस एनी प्रॉब्लम ठीक है लोकल कल्चर की बात करो तो नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं गई है बट हाँ मैंने इजीली अडेप्ट कर लिया है यहाँ पे यू वोंट बिलीव दिस इज सो गुड थिंग हियर इन यूरोप दे लिटरली रिस्पेक्ट ईच अदर लाइक अगर आपको कोई सामने से दिखेगा आप उनको स्माइल कर सकते हो यू कैन से बोनजोर यू कैन जस्ट स्माइल एंड दे विल स्माइल एज वेल लाइक इन जापान व्हाट हैपेंस दे डू समथिंग लाइक दिस राइट सो इन इंडिया कोई अपने किसको देख के स्माइल करे दे विल बी लाइक ओए ओके आई वांट मैं इंडिया को बुरी नहीं बोल रहा हूँ बट बता रहा हूँ कि we should adapt this thing in India as well, right? But at the end, I love my country. So yeah, so ये चीज़ बहुत अच्छी है and people are really kind and helpful. Like even if they don't know English, they will try to help you in any way. Like they will just remove their mobile for French to English convert करेंगे. They will say and they will help you. So this is so good thing, you know. So they are helpful. That's what I wanted to tell you. Third point, are there any aspect of living in Luxembourg that I found particularly challenging or surprising? No, I didn't find anything like that. Challenging तो बिल्कुल नहीं लगा बिल्कुल भी नहीं लगा सरप्राइजिंग भी बिल्कुल नहीं लगा या आई एम श्योर मुझे नहीं लगा लाइक मुझे कोई क्लिक नहीं हो रही है चीज और बाय एनी चांस क्लिक होती है तो उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बन जाएंगी यार व्हाई नॉट हे हाय गाइस सो आई वाज जस्ट एडिटिंग दिस वीडियो एंड मुझे एकदम से क्लिक हुआ कि हाँ ये पॉइंट मैं ऐड कर सकता हूँ विच इज़ यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे इंडिया में कैसे होता है 24/7 यू कैन ऑर्डर एनीथिंग एंड इट यू विल गेट इट इन लाइक लेट्स से 9 or 10 minutes राइट यहाँ पे ऐसा ऑप्शन नहीं है फर्स्ट थिंग सेकंड थिंग यहाँ पे 8 बजे सब कुछ बंद हो जाता है तो लाइक मॉर्निंग में 7 और 8 AM को सब शॉप्स वगैरह खुलेगा एंड 8 PM को सब कुछ शॉप्स बंद हो जाएगा सो ये सेकंड थिंग जो बहुत सरप्राइजिंग थी एंड इट्स कॉमन इन द होल यूरोप ऐसा ज़रूरी नहीं कि लक्समबर्ग में ये प्रॉब्लम है इट्स एवरीवेयर एक और चीज़ द थर्ड पॉइंट है सैटरडे संडे सब बंद रहता है सैटरडे को शॉप खुला रहेगा बट वो भी 7 और 6 को बंद हो जाती है संडे को सब बंद रहता है एंड जैसे मैंने बताया था कि शॉर्ट विंटर डेज होते हैं बट देर इज़ वन मोर प्रॉब्लम विच इज़ लाइक जैसे मैंने बताया कि 8 PM को सब बंद हो जाता है तो जब अगर आप घर के बाहर निकलोगे तो इतना सन्नाटा रहेगा इतनी शांति रहेगी कि अगेन यू गेटिंग मी राइट सो इट्स नॉट लाइक इंडिया लाइक इंडिया में कैसा आई एम नॉट टेलिंग कि शोर शराबा होता है बट बहुत अच्छा लगता है कि थोड़ी आवाज़ आ रही लाइक मैं मुंबई में रहता था तो मुझे पता है कि वो मुझे बहुत आई मिस दैट थिंग कि यार आवाज़ वगैरह आ रही है बट हियर इन लक्समबर्ग और इन यूरोपियन कंट्रीज यू विल नेवर फाइंड सच थिंग्स 8 बजे सब शांति इवन इफ यू मेक सम नॉइस ना दे माइट कंप्लेन सो या दैट्स द थिंग Now let's move to the rapid fire question. The very first is biggest culture shock upon arriving in Luxembourg. कोई culture shock नहीं था बस ये एक चीज थी guys कि यहाँ पे जो समर होता है उसमें डे बहुत बड़े होता है और विंटर होता है उसमें रात बहुत बड़ी होती है तो समर बहुत अच्छा फील होता है लाइक यू कैन वेयर एनीथिंग एकदम लूज चीज़ें बट यहाँ की गर्मी इंडियन गर्मी से भी बहुत खतरनाक होती है कि इवन 35-36 रहेगा नॉट इवन 35-36 बट 30 to 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा बट वो इतना ज़्यादा रहेगा कि यू जस्ट कैनॉट सस्टेन और यू वोंट बी एबल टू लिव बिना फैन और एसी के एंड विंटर में ठंडी इतने नहीं है मुझे ठंडी से कोई प्रॉब्लम नहीं है बट जो रात होती है वो बहुत बड़ी होती है शॉर्ट विंटर डेज सो इट्स डिप्रेसिंग सिंपल
So favorite local dish or place to eat? Well, I tried so many things, not in Luxembourg but in Germany, and I just love this thing. Like उनके यहाँ पे कुछ तो cake or something मिलता है, not mosa. There is some other thing. बहुत tasty होता है and it's pure veg, you know. Like वो क्या किस चीज से बनाता है आई डोंट नो बट इट्स सो टेस्टी। मे बी मैं फोटो अटैच कर दूंगा और मे बी नेक्स्ट वीडियो में मैं ओके वेट मैंने शॉर्ट्स ऑलरेडी डाला है। शॉर्ट्स में अगर आप देखोगे तो मैंने वो कवर की कि मैंने क्या चीज खाई है। सो यस। और थर्ड क्वेश्चन इज गाइस लेट मी टेक अ रेस्ट। मैं बहुत थक चुका हूँ। प्लीज लाइक कर दो एंड कमेंट करो कि वैभव थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। लाइक दिस वीडियो हेल्प मी अस अ लॉट। Say this guys because I'm so tired now. Let me sleep. Okay, that's it. So one thing I wished I knew before moving to Luxembourg. Let me think, and I'll get back to you on this question. Yeah, one thing I wish I knew before moving to Luxembourg. अगर मुझे पता होता था कि यहाँ पे ये इंग्लिश भी बोलते हैं, फ्रेंच भी बोलते हैं, लक्समबर्गिश भी बोलते हैं, जर्मन भी बोलते हैं, and वो इतने काइंड। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं ऑफ कोर्स जर्मनी में अप्लाई करता ही नहीं था। मैं लक्समबर्ग में ही पहले अप्लाई करता था। तो yes, that's true. These people are very kind, which I have already covered, but they know ऑलमोस्ट एवरी लैंग्वेज। यहाँ पे 50% से ज्यादा लोग जो है वो लक्समबर्गिश है ही नहीं। सो वो दूसरे कंट्री के हैं। सो दैट इज गुड। सो दे नो ऑल द लैंग्वेजेस। और यहाँ पे इंडियन कम्युनिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। इंडियन एसोसिएशन लक्समबर्ग इफ यू विल सर्च Indian community and they help us a lot. So yes, everything is fine here. You'll never face any problem. And if by any chance अगर आप face करते हो, you can just text that thing on the group. But group full हो चुका है, so unfortunately I cannot add anyone. वो full group community ही full हो चुकी है। So अगर आप कोई problem face करते हो, you just contact me. I'll text there and those person will contact you. So इसी तरह हमने घर ढूंढा था यहाँ पे, you know. So yeah, that is it for this video. I believe you enjoyed. And if by any chance if you have any more questions, tell me. मैं वो भी कवर करूँगा. But आज के लिए इतना ही। मैं बहुत थक चुका हूँ। Like to this video, guys. Okay. And please, I repeat, ये question दिमाग में डाल लो. If you are thinking to apply to the University of Luxembourg, खुद से गाइस इफ अगर आपका एटीएस रिजेक्ट होता है, लिटरली आप लाखों में पैसे वेस्ट करोगे। एजुकेशन लोन प्रोसेसिंग फी, देन यूनिवर्सिटी ऑफ लक्समबर्ग की प्रोसेसिंग जो एप्लीकेशन फी, देन एसओपी एनओआर की मेहनत, जो भी आप पैसा स्पेंड करोगे पूरा वेस्ट जाएगा अगर आपका एटीएस रिजेक्ट होता है। तो इट्स बेटर कि आप प्रोफेशनल पर्सन को अप्रोच करो, विच इज मी। या आई कैन कॉल माई सेल्फ प्रोफेशनल क्योंकि लास्ट जो बैच थी उनको मैंने हेल्प किया था और जिसको भी मैंने हेल्प किया था 100% सबका एटीएस एक्सेप्ट हुआ था। आई वोंट गिव माई सेल्फ क्रेडिट, आई गिव इन्फोरेंस टीम द क्रेडिट बिकॉज दे डिड एवरीथिंग। स्पेशल टीम बनाई है मैंने जो फाइनेंस संभालेगी। आपको 0 रुपये पे करना पड़ेगा फॉर प्रोसेसिंग फी। आई रिपीट, एजुकेशन लोन के लिए 0। और ऐसे अगर आप खुद से करोगे 1.5% विच इज अराउंड 10,000 रुपीज। सो व्हाई टू स्पेंड दैट मच अमाउंट? उतने में तो आप ये पैक ले लोगे एंड we will cover everything. I repeat, everything: admission letter, diploma, and everything. So, guys, just think about this. Okay. Thank you so much for watching this video. Have a fantastic year ahead. Bye.